Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड the ARY Zap App and the ICC Cricket Men's World Cup 2023. खबर आप सबके लिए हैदराबाद से ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट चेस कर लिया है. What a victory for Pakistan. Congratulations to Pakistani fans all around the world and well played to the Pakistani team, especially Rizwan and our freshly minted new opener that we've got. Congratulations to everybody involved there. What a great beginning for some of these young minds, young players in the team. और दोस्तों उसके साथ ही आप लोगों को Pavilion में introduce कराता हूँ. I have 4 very happy former captains, 4 who were very tense the halfway point, but now very, very happy. Some very good predictions, some very good analysis that we did in the mid-break. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Shoaib, welcome. And I know you're happy, very, very happy. Everyone. Mr. Dependable Misbah. Misbah, अब तो मुस्कुरा दो ये बात. I've got Mr. Moin Khan. Moin, बहुत मुबारक हो. आपको भी मेरी तरफ से सबको पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक. And the legend himself, the very, very happy Sultan of Swing, Wasim Akram. भाईजान, मुबारक. अस्सलाम वालेकुम जी. Alaikum. All right, let's get down to business. What a fantastic innings there by Asadullah Shafiq and our very own Rizwan. Abdullah Shafiq and Rizwan. My apologies. Asadullah Shafiq कौन ही? Abdullah मेरी गलती. मेरे कान में म्यूजिक भी चला रहे हैं बहुत जोर से. I'm doing my apologies. डीलर के साथ नाम था. वो actually मोइन भाई ने किया था बीच में. That led to this. Coming back to Asadullah Shafiq, Abdullah Shafiq. Abdullah Shafiq. सबको पता था क्या ज़बरदस्त प्लेयर है. बड़े अरसे से लोग, आप जो क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, वो कह रहे थे इसको चांस नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिला. और देखें क्या मौका मिला है, किस स्टेज पे मौका मिला है. वर्ल्ड कप में, दैट टू इन इंडिया अगेंस्ट श्रीलंका, जिससे अभी हम हारे थे. और क्या कूल, काम एंड कलेक्टिव उसने इनिंग खेली है. सिलेक्टिव शॉट शुरू में थोड़ा फंसे हैं, ठीक है. 10 ओवर्स में ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ, इट्स फाइन. बट एज लॉन्ग एज व्हाट मैटर इज द एंड रिजल्ट. एंड कमिंग बैक टू रिजवान, लायन हार्ट, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं उसको, अपने आप को मुक्के मार रहा है. दैट शोज हाउ मच ही वांट्स टू विन फॉर हिज कंट्री. सो वेल डन द होल Pakistan cricket team. You made us proud. Absolutely. Let's take a look at the match summary. This is how it went down. Sri Lanka won the toss, elected to bat first and put up what looked like a mammoth total, undoable, 344. Never chased in a World Cup game. 344 for 9. Mendes there with a spectacular century up front. There was the other one is 108 as well. Then Nisanka also contributing 51. Really good. Pakistani bowling. Well, Hassan did get 4 wickets, but for the 71 runs, the economy rate definitely a question, and a few questions there for Pakistani fielding as well. But in return, Pakistan wobbled on the top when Imam and Babar left the crease. But then it was Abdullah Shafiq who took control of the situation along with Rizwan and made sure that they set up Pakistan for this historical win. Pakistan winning that one by 6 wickets. सबसे पहले तो मोइन आपको बिकॉज कंग्रेचुलेशन खास तौर पे इस बात पे क्योंकि आपने अब्दुल्ला शफीक को चूज़ किया था जब अपने प्लेयर ऑफ द हमने कहा था वॉच आउट फॉर यू सेड दैट मस्ट बी रियली हैप्पी. यस ऑफ कोर्स, यस, द वे ही प्लेड लाइक ग्रेट इनिंग. मैं कहूँगा इतने प्रेशर के अंदर जिस तरह की इनिंग, और बहुत ही पॉजिटिव थ्रू आउट नजर आया. वेरी कूल, काम, कंपोज थे. पता था अपने टारगेट्स का, यू नो दैट्स हाउ ही प्रोग्रेस इज इनिंग्स. और जिस तरह लेके चले, एंड देन अगेन जैसे प्रेज किया वसीम ने, रिजवान नो डाउट आउटस्टैंडिंग, वेरी वेरी शार्प क्रिकेटर, जो सही मायनों में मैं कहता हूँ जिसे फाइटर नज़र आया आज. वसीम मैंने भी बोला अभी कि जिस तरह क्रैम्प्स पड़ रहे थे उसको, उसके बावजूद वो जो स्प्रिट थी उसके अंदर जीतने की, आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. एक तो उन्होंने जो स्वीप मारे ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर, तो वसीम ने कहा मोइन आपकी वाली शॉटें याद आ गई. बिल्कुल. और लेट मी एक्सप्लेन दिस टू क्रिकेट लवर्स दैट क्रैम्प्स, और क्या सिखाया लफ्ज़ मैंने आपको पंजाबी में, कुल्लड़. कुल्लड़ में कुड़ाल, कुड़ाल कहते हैं. कुल्लड़ इज समथिंग डिफरेंट. बट या क्रैम्प्स जो पढ़ते हैं उसमें ठीक ठाक पेन होती है. अगर आपको कभी नहीं पड़े एज अ क्रिकेटर और यू नो इतनी आप एक्सर्जन नहीं करते, सो उसमें खेलना, उसके बावजूद आपको पता हो कि मेरी टांग में क्रैम्प पड़ रहा है और इस टांग में शायद पड़े मैं हिट मारने जाऊं, तो आपका माइंड थोड़ा 70% यहाँ होता है, 30% गेम पे होता है, बिकॉज इट्स अ शार्प पेन. Maybe you guys can explain more present players. लेकिन आज वसीम सिर्फ वो क्रैम्प्स ही नहीं थे, उन्होंने एक दफा बॉल अपने पाँव पे भी मार लिया, एज लगी, ये लगी, काफ़ी इंजरियाँ हुई हैं आज. एक दफा कमर भी उनकी. वसीम भाई ने सही कहा कि जब क्रैम्प्स पड़ते हैं तो आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं. इवन दो ही वाज बैटिंग 80+ रन्स
फिर भी वो 80 रन आप भूल जाते हैं। This was easy to go out. Yes. You know कि cramps पड़ने I'll go out, but he didn't. Yeah. That shows that how much he wanted to win that game. Of course, commitment level was next level। और एक और भी अच्छी चीज़ थी कि क्रैम्प्स फ़ौरन चले गए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि क्रैम्प्स फ़ौरन चले जाते हैं। लेकिन प्रीवियसली वी सीन इसका क्या मतलब है? प्रीवियसली नहीं, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं जिसमें वी डिड जड़ी बूटियां कोई खास कोई वी डिड डिस्कस अबाउट टेकिंग जेल्स जो इंस्टिंक्ट आपको अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं वो ले जाते हैं। उनमें पिकल जूस आता है, वो होता बहुत कड़वा है, लेकिन अगर आप पिकल जूस ले तो उससे भी फ़ौरन क्रैम्प्स जो है वो चले जाते हैं। क्योंकि हमने नसीम शाह को क्रैम्प्स पड़े थे वर्ल्ड T20 में एंड ही कुडंट बोल हिज लास्ट 2 ओवर्स। और तो वो बहुत बड़ा एक झटका था वर्ल्ड T20 में, लेकिन इट्स अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान। देखो जब हम नए बच्चे थे क्रिकेट में पाकिस्तान टीम में आए तो हमें भी क्रैम्प्स पड़ते थे। तो हम जब उस वक्त की नॉलेज थी या हमारे साथ जो फैसिलिटीज़ थी खास होती नहीं थी, एक फिजियो भी नहीं था होता हमारे पास, तो हमें यह बताया जाता था टोटली रॉन्ग कि पानी नमक पा के पी जाओ, और डिहाइड्रेट वो और डिहाइड्रेट हो जाता है। वो हमें पता जब रिटायर हुए तो पता लगा कि ऐसी तो गलत करते रहे सारा कुछ। आपको याद होगी हकीकत एक एग्जाम्पल है फखर, 98 पे नॉट आउट थे, क्रैम्प पड़ गए थे जाहिद फजल को शारजा के अंदर, यू नो, और ये टू कम बैक 100 भी नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाए थे, इतने यानी गर्मी जब बाहर आया तो वो ऐसे था। मैं क्या कि पाइन गोली बज गई है। उन्होंने हमें वो स्टोरी सुनाई थी। अच्छा। कह रहे 98 पे ऐसे क्रैम्प्स थे कि मैं 2 रन भी नहीं बना सका। उंगलियों में भी तो क्रैम्प्स आ गए। अच्छा खैर सियालकोट के तो हम बैठे हुए, मैंने कहा जाहिद भाई 2 रन थे, आपने 2 रन भी नहीं बनाए। कह रहे हैं यार बड़ी बुरी हालत थी। मैंने कहा फिर आपने बाहर आके क्या सोचा? कह रहे मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, मुझे थोड़ी सी होश आई, फिर मैंने अपने आप को 3-4 थप्पड़ मारे। ओए तू 2 स्कोर रास्ते में नहीं से रुक सकता। वो हमें क्या देता कुछ बेटे हम करा देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मिसबाह, seems like when you have a very big total, जो कि आज एक तारीखी टोटल चेस किया है पाकिस्तान ने, तारीख रकम की है वर्ल्ड कप क्रिकेट के अंदर, there are 2 ways to go about it. Either you go hard right from the word go, or you build an innings and take it home, जो आज हमने देखा है एग्जाम्पल। देखिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रीवियस वर्ल्ड कप्स या वनडे क्रिकेट का और अब का, वो जो 10 ओवर से लेके 40 ओवर का पावर प्ले है, एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर है, वो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। सो 7 एन ओवर ऑन सच अ गुड विकेट, जहाँ पे शाम के टाइम आपको पता है कि अपोजिशन के बाद कोई ऐसा एक्स फैक्टर बड़ा नहीं है बॉलिंग में, उनकी मेन स्ट्रेंथ उनकी स्पिन बॉलिंग है, और इस पिच पे कोई इतना ज़्यादा स्पिन को हेल्प नहीं मिल रही, तो आप हमेशा यू फैंसी योर चांसेस के वी हैव टू प्ले 50 ओवर्स, और अगर हमारे बैट्समैन ऊपर से 50 ओवर्स तक जाएंगे वी हैव अ वेरी गुड चांस। उसकी एग्जांपल आप देख लें कि पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेला है, बड़ी इंटेलिजेंट क्रिकेट खेला है। अब्दुल्ला शफीक आई मीन थोड़ा सा वो टेस्ट क्रिकेट में जो खेला है वो, और फिर उसका टेम्परामेंट, फिर उसकी टेक्निक, वो सारी चीज़ों ने उसको हेल्प किया है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी रीडिंग ऑफ द गेम, जो नॉर्मली वी डोंट एसोसिएट विद आवर यंगर प्लेयर्स व्हेन दे कम एट इंटरनेशनल सीन। मतलब चांसेस दोनों ने वहाँ पे लिए हैं कैलकुलेटेड, मिड ऑफ अप है तो इनसाइड आउट मार रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर ये इनसाइड आउट शॉट्स दोनों ने मारे हैं बड़े ज़बरदस्त, और राइट टाइम पे अब्दुल्ला ने अटैक किया, उसने रिजवान पे प्रेशर नहीं बिल्ड होने दिया। और एक चीज़ उन्होंने जो बड़ी अच्छी रीड की कि रिजवान हैज़ टू गो टिल एंड, सो जहाँ पे भी थोड़ी सी एवरेज अगर डिफरेंस बीच में आ रहा है और एवरेज ऊपर जा रही है तो वो बाउंड्री का चांस लेता रहा हर ओवर में। सो वेरी वेरी प्लान्ड इनिंग, वेरी गुड टेम्परामेंट वाइज, एक्सीलेंट, सो गुड फ्यूचर है। वेरी वेल कैलिब्रेटेड, सिर्फ उनकी इनिंग्स ही नहीं बट अ वेरी वेल कैलिब्रेटेड पार्टनरशिप, जिस तरह आप कह रहे थे कि दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। 2 पे 37 पे 2 विकेटें थी, और उसके बाद 213 पे तीसरी विकेट गिरी है। और वसीम, बड़ी इंटरेस्टिंगली, सो द यंग श्रीलंकन साइड वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट द मोमेंट दे गॉट बाबर आजम आउट, और पाकिस्तान पे प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा आ गया था, तो वो प्रेशर भी एब्जॉर्ब किया उन्होंने, दोनों ने बड़े जबरदस्त तरीके से। बट देन एज ए प्रोग्रेस अलोंग you'd see the body language of the Sri Lankan team just dropping. I think Sri Lankan didn't help their cause either. जी, आप you had a point on that, a very good point. Pati Rana जो उनका young bowler है, is about 19-20 maybe, he's a very good bowler,
but he's a bit too young for one day ODI cricket. T20, yes, is good because slingy action है, pace है, अच्छे variation है. वन डे में अगर आपने आउट करना है वो आपको लेंथ बॉलिंग सीखनी पड़ेगी, उसके लिए इसको थोड़ा फर्स्ट क्लास खेलना पड़ेगा. सो आई थिंक दे शुड हैव प्लेड कुमारा, लहीरू कुमारा वी वर डिस्कसिंग इंस्टेड ऑफ हिम, बिकॉज उसकी पेस भी है और उसकी लेंथ थोड़ी अच्छी है और इनकी फील्डिंग भी. और फिर 3-4 मेरे ख्याल में 3 वाइड बॉल हुए हैं जिसपे 5 रन मिले हैं, वो भी. स्पेशली वसीम भाई, ये 4 फील्डर्स के साथ अगर आपका बॉलर स्टॉक बॉल उसका लेंथ बॉल नहीं है तो वो बड़ा ही मुश्किल. आपका जो ये बॉलर है उसका जो स्टॉक बॉल है स्लोअर वन या यॉर्कर है, अब 4 फील्डर्स में आपने मिड ऑफ हमेशा ऊपर रखनी है और लेंथ आप कर नहीं सकते. अब बाउंसर करेंगे या थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दैट कम्स नाइसली ऑन द बैट, बड़े आराम से आपको ड्राइव लगेगी, थोड़ी सी बाहर आई तो कट आपको लगेगा. तो इसलिए मेरे ख्याल में आज अगर हसन अली को देखें, जिसको भी देखें जिसने थोड़ा लेंथ पे बॉल मारा, इवन हारिस रऊफ, दैट बॉल वाज गोइंग, थोड़ा सा बाउंस भी मिल रहा था, थोड़ी लेटरल मूवमेंट भी थी. अदरवाइज इफ़ यू बॉल फुलर या शॉट गए हैं और आपकी पेस नहीं है. एक्चुअली मिसबा हमने भी बात करनी है पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से भी बात करेंगे, बट वी विल जस्ट गो थ्रू द बैटिंग ऑफ पाकिस्तान बिकॉज एज इट इज़ ये बड़ी मॉन्यूमेंटल चेस रही है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए. नॉट ओनली कि वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख रकम की गई है, 342 रन कभी भी चेस नहीं हुए थे किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर, इन ओडीआई वो. ऑल्सो पाकिस्तान ने आज तक 300 रन से ज़्यादा चेस नहीं किए वर्ल्ड. सो दिस इज अ डबल थिंग, सेकंड हाईएस्ट स्कोर दे chased 349 against Australia, I think last year. In an ODI. And then in ODI and then this one. This one, yeah. So it's been really good for Pakistan. But again, ये ज़रा अब्दुल्ला की ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी और मज़ीद. इन्होंने ये 5वां इनका ODI था और वर्ल्ड कप डेब्यू पे इन्होंने अपने वर्ल्ड कप का डेब्यू किया है आज, और जो है वो सेंचुरी गाड़ी है इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ. नाउ we know that he had already scored before as well. उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी टेस्ट मैच में भी की हुई बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सेंचुरी की थी, उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया था. सो आई होप कि अब इस किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा इनके साथ. या देखिए, यंगस्टर आप जब होते हैं टीम के अंदर आते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आपको ना चाहते हुए ड्रॉप कर दिया जाता है या रेस्ट करा दिया जाता है, यू नो. बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स. अब्दुल्ला जिस तरह की नेचर के प्लेयर मुझे लगते हैं, वो हमेशा कम बैक करने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं. आज भी जो इंटेंट नज़र आया है, जितना आई मीन पॉजिटिव थे वो आउटस्टैंडिंग इनिंग उसी वजह से खेली है उन्होंने, बिकॉज ही नो कि मेरी एक तो मैंने अपनी जगह भी बनानी है टीम में और ये मैच जिताने से मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, यू नो. आई थिंक वो जो चीज़ थी ना, जो प्लेयर अपने आप को खुद अप्रोच करता है कि यार मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो पूरी एक प्रोफेशनल सारी एथिक्स नज़र आए अब्दुल्ला के अंदर. और इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो अब मज़ेदार 14 तारीख को जो इंडिया से मैच है ना उस पे बहुत ज़्यादा होना है. इसका हो गया. ये तो होगी जनाब अब्दुल्ला की बात. एंड ऑफ कोर्स रिजवान जस्ट वंडरफुल द वे ही फिनिश्ड द गेम. बट लेट मी कम टू यू शोएब, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन विद बाबर आजम? इट सीम्स लाइक कि उन पे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप का ये प्रेशर फील कर रहे हैं, टीम का प्रेशर फील कर रहे हैं. व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम? बिकॉज आज फिर उनको ही स्ट्रगल्ड फॉर अ बिट एंड देन एक बड़ी ही सॉफ्ट किस्म का डिसमिसल हुआ ऑन साइड पे, वो पीछे कॉट बिहाइंड हो गए लेग साइड पे. बाबर बिल्कुल भी जब वो बैटिंग करने जाता है तो लीडरशिप का प्रेशर नहीं नज़र आता है. आज भी ही वॉज मिडलिंग ऑलमोस्ट ऑल द बॉल्स. ऑन दी अप भी उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेले ऑन साइड की तरफ. सिर्फ ये है कि थोड़े अनलकी रहे. ऐसा कोई भी बैटर आउट हो सकता है, आप अपनी टांग से आउट हो सकें. ये देखिए, ये उन्होंने जो ऑन साइड पे शॉट्स खेले हैं और बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, बॉल रोक भी रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस से रोक रहे थे. सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा वो अनलकी रहे, लेग साइड से आउट हो गए. लेकिन ये है कि बाबर जो है, मैंने नहीं कभी भी उनको देखा कि लीडरशिप उनको जो है वो प्रेशर में ला रही है. और 1-2 इनिंग्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बाबर आजम हमें पता है कि वो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, बल्कि रैंकिंग उनकी नंबर 1 है. एंड आई एम श्योर गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट वो वापस उसी फॉर्म से रन्स बनाएंगे. Yeah, we definitely hope so because we need the captain to start firing because that's what the Shaheen squad needs to get all the way to the business end of this tournament. अच्छा, ये तो होगी बाबर की बात. मिसबा, आपने पहले मैच में, नीदरलैंड्स वाले मैच से पहले भी जिक्र किया था कि इमाम की बैटिंग में एक इशू है, जो उनका बैट की जो ट्रिजेक्ट्री है, जिसकी वजह से जब वो हुक और पुल मारते हैं तो वो अपिश लगता है. नीदरलैंड्स ने भी उनको उसी तरीके से आउट किया, उन्होंने फाइन लेग पीछे की और उनको बाउंस आउट किया. आज भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन हुई है उनके साथ दोबारा.
Does that mean कि जो सारी टीमें जो आप देख रही हैं, that's the plan that they're going to execute it, they're going to attack him short of length and try to get him out like that? अब तो लग रहा है कि जब आप 2 दफ़ा आउट हो जाते हैं तो फिर नॉर्मली टीम्स आपको ज़रूर बाउंसर पे चेक करेंगी। इट डजंट मीन कि वो हमेशा इसी बॉल पे आउट होता है या इसको वो खेल नहीं सकता। समटाइम्स अगर आपकी 5-6 इनिंग्स ऐसी हो जाए, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, आपका मिडल में टाइम नहीं गुजरा, तो कुछ ना कुछ आपके ना डिसीजन मेकिंग में ऐसी चीज़ें वो जो कहते हैं ना तारें जुड़ जाती हैं। आप जब थोड़ा टाइम गुजारते हैं, आपका एक रिदम चल रहा होता है, तो देन इन्हीं बॉलों को वो चौके भी मारता है। ऑब्वियसली एक चीज़ ज़रूर है उसकी कि आपका जो बल्ला ऊपर से आता है और यहाँ आप मीट करते हैं, पूरी एक्सटेंशन होती है, इसका थोड़ा सा बैक लेफ्ट या पूरी आर्म खुलती नहीं है कई दफ़ा पुल पे, ये यहीं बंद रह जाती है, करीब आ जाता बॉल, जिसकी वजह से फिर ऊंचा बाउंसर स्पेशली जब जहाँ पे आता है आपके, तो वो कंट्रोल नहीं होता। बेस्ट थिंग यही है कि अर्ली ऑन अगर आपसे ये नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप उसको छोड़ता भी अच्छा है, छोड़ लेता है इस गेम को, थोड़ा सा टाइम गुजारेगा और अपनी जो कट शॉट्स हैं, कवर पे बड़ा अच्छा खेलता है, सामने ड्राइव अच्छी खेलता है, थोड़ा उस पे वापस आएगा तो रन्स मिलेंगे। व्हेन यू जस्ट स्टार्ट मिडलिंग द बॉल, रन्स एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद ब खुद जैसे जैसे रन्स करते हैं, 10, 15, 20, 30 आप करते हैं, हर चीज़ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। वो रिदम है पूरा बैटिंग का, वो वापस आ जाता है। जब आप रन्स नहीं कर रहे होते तो आपका रिदम कहीं ना कहीं टूट रहा होता है, कोई मूवमेंट लेट हो रही होती है, बल्ला लेट आ रहा होता है, कोई चीज़ कभी जल्दी चली जाती है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट। अभी पाकिस्तान में हमारा कंटिन्यूइंग दिस कन्वर्सेशन, डिफरेंट थोड़ा सब्जेक्ट है, नाम वही, पाकिस्तान का बेस्ट फील्डर इस वक्त कौन है प्लेइंग 11 में? शादाब। शादाब इज अ गुड फील्डर। सो आपका बेस्ट फील्डर कहाँ खड़ा होना चाहिए पहले 10 ओवरों में? बैकवर्ड पॉइंट ऑफ कोर्स। सो वहाँ पे कौन खड़ा हो रहा है? इमाम था। इमाम। सो इमाम ने कैच ड्रॉप कहीं से भी हो सकता है, बट अगर आप उसको नोट करें, मैं उसको नोट करूँ एशिया कप से, यहाँ से जहाँ प्रेशर में उसके पास गेंद गया, भाई से फंबल हुआ है। सो आइडिया इज शादाब क्यों नहीं फील्डिंग कर रहा? आई डोंट नो, मे बी शादाब ने की है वसीम भाई बैकफुट पॉइंट पे, लेकिन जब अराउंड 25th या 26th ओवर से ही स्टार्टेड फील्डिंग एट बैकफुट पॉइंट एंड ही सेव्ड लॉट ऑफ रन्स, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है आज, ये ऐसी पोजीशन है कि आपको जो कॉर्नर्स हैं उनको कट करना होता है, और ये बड़ी स्पेशलाइज्ड जो है ये फील्ड प्लेसमेंट कर देगा बच्चे को, क्या बच्चों को? वो ये होता है कि जो बैकफुट पॉइंट का फील्डर है वो आइडिया सबसे पहले ये लगाता है कि पिच पे बॉल स्किड हो रहा है या स्लो आ रहा है। अगर स्लो आ रहा है तो वो बिहाइंड स्टंप्स नहीं खड़ा होता, वो थोड़ा सा सामने आ जाता है, और स्किड हो रहा हो तो वो बिहाइंड स्टंप्स चला जाता है। तो जब ऐसे पेस जब तेज़ आ रही हो तो आप यूजली क्या करते हैं, आपके लेफ्ट साइड पे ज़्यादा बॉल आएगा, क्योंकि पेस से आ रहा होता है, बैट को लगता है तो वो अंदर वाली साइड पे जाता है, स्लो होता है तो वो बाहर की तरफ। तो वो इसी तरह मूवमेंट जो है ना उसकी, वो अगर राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, उस तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। और बैकफुट पॉइंट फील्डर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको पता होता है कि मैं कितना सामने तेज जा सकता हूँ या मैं कितना साइड्स पे मूव कर सकता हूँ, तो वो अपने आप को उस तरह एडजस्ट करता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर गिवन डे पे कोई भी फील्डर आएगा, वो ये नहीं कह सकता मैं बैकफुट पॉइंट पे खड़ा हूँगा। तो शादाब इज द स्पेशलिस्ट फील्डर फॉर बैकफुट पॉइंट पोजीशन, जो कि वसीम भाई का पॉइंट था। बट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी पॉइंट है। एक तो इससे इमाम पे स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट पे आपने हर बॉल पे कंसंट्रेट करना है, आइदर स्पिनर और अ फास्ट बॉलर, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है आपने। और ये ड्रॉप कैच जो इमाम ने किया, वो 100 कर गया उसके बाद बैट्समैन। You know, अगर आज ये चेस ना हुआ होता तो this century would have hurt us a lot, because this is the century that actually put up that mammoth total for Sri Lanka that we had to 21 रन पे थे जब जी 21 रन पे थे। और ये चीज़ और भी हो सकती है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी पोजीशन पे जो अब्दुल्ला शफी आउट हुए, जो जिस तरह का श्रीलंकन, वो क्या कैच था, वो कैच क्या था, कैच था, बहुत ही लग रहा था, फ्रेश लेग्स आई थी ना जी हाँ। नॉर्मली पाकिस्तान टीम में शादाब नंबर 1 पॉइंट पे हमेशा से करता है, बट शादाब अगर नहीं होता फॉर सम रीज़न, पीछे इंजर्ड हुआ था, तो देन इमाम करता है। इमाम मतलब अभी इसकी फॉर्म की वजह से फील्डिंग पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उसका, वरना ही इज़ नॉट दैट बैड के बेचारे से ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल प्रेशर इन द फील्ड। मुझे लगता है कि शादाब जब से इसका वो क्वाड का इसका बार बार इंजरी रीअकरेंस उसकी होती रही है, तो अब थोड़ा सा उसकी वजह से भी ये बड़े मैच जैसा वर्ल्ड कप है तो थोड़ा सा
वो उसको सेफ भी करते हैं, उसे साइडवेज मूवमेंट बहुत क्विक होती है और उसमें वो काफ़ी दफ़ा इंजर्ड हुआ है, तो ये भी एक रीज़न है। 25 ओवरों के बाद क्यों खड़ा हुआ वो? हाँ पहले 25 सेव कर लेते हैं, आगे में इन्वेस्ट कर देंगे। चलो We got the pavilion going on, but we have more on the other side. क्योंकि बहुत सारी और भी बातें करनी है। आज की एक शानदार जीत पाकिस्तान के लिए, which the entire country is celebrating. Congratulations to Pakistani fans all around the world. It was an important win. It's momentum in our favor, and with that, we're going to take a break right here on the pavilion. But when we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड the ARY's app and the continued coverage of the ICC World Cup, and Hyderabad is hot tonight because Pakistan have chased a historical total in a World Cup game, and boy oh boy, that innings by Rizwan and Abdullah would be remembered for a very, very long time. Very, very proud Shaheens today and Shaheen fans around the world. Congratulations. With me, I've got 4 former captains of the Shaheens. I've got the Falcons, the Eagles, the soaring high players of their time. Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. आइए जरा नजर डालते हैं points table पे. All right, guys, take a look at that points table. Look at that. Pakistan climb up to the 2nd position with a good, healthy net run rate, right behind New Zealand. South Africa at number 3 with 1 game, and India with 1 game at number 4. याद रहे कि 2-2 गेम्स जो हैं अभी तक वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने, और फिर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ने भी अपने 2 मैचेस खेल लिए, नेदरलैंड्स ने भी अपने 2 मैचेस खेल लिए. लुकिंग रियली गुड. रिमेंबर, टॉप 4 टीम्स इवेंचुअली विल एंड अप ऑन in the semi-finals, and that's how it's going to be. That's how the points table looks like today. हमने अब्दुल्ला की इनिंग्स की तो बात की, रिजवान के बारे में, उनके क्रैम्प्स के बारे में बात की, बट यू नो दिस समथिंग इंटरेस्टिंग दैट वी नीड टू शेयर विद एवरीबॉडी. इस साल ओडीआईज के अंदर रिजवान ने दिस ईयर, करंट ईयर, 827 रन बनाए हैं. ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग विकेट कीपिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ विद द एवरेज ऑफ 75. एंड यू नो मिसबा, जितनी दफ़ा आप इनको देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं, other than the pain that he was going through, it always seems like he's enjoying his role, his moment in the middle. जी बिल्कुल. जब एक फाइटिंग स्पिरिट होती है तो जैसे ही टफ सिचुएशन आती है आप थोड़ा सा और अलर्ट हो जाते हैं. तो यही चीज़ नज़र आती है रिजवान में. जब एक चैलेंज आता है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रही है. दैट्स गुड साइन फॉर पाकिस्तान. हमें ऐसे ही मैच विनर्स चाहिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आके जो मैच को हैंडल करें, 2 आउट के बाद आके उसको एंड तक लेके जाएं. और एक चीज़ ऐसी कि 344 पहले कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम एवर. स्टिल यू हैव द बिलीव कि हम खड़े रहेंगे, हम कर लेंगे. और बीच में अगर प्रेशर भी आया, दैट्स द की. आई थिंक दैट इज द की. 2 हफ्ते से पाकिस्तान की टीम हैदराबाद में मौजूद है वसीम. सो डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ हैज दे हैव acclimatized to the environment, they've understood the environment, the conditions and all, and that is kind of giving them a little edge? Conditions more or less same ही हैं, weather भी same है पूरे इंडिया में, but I suppose staying at one place for 2 weeks give you a bit of peace of mind, right, instead of traveling every day. Pack, unpack, practice, then come back, then travel. So it's blessing in disguise कि पाकिस्तान टीम हैदराबाद में रुकी हुई है. और दूसरा, क्रिकेट इस मुल्क में पाकिस्तानी टीम स्पेशली ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर देती है, अपने लोगों को जिनको क्रिकेट का शौक़ नहीं भी है, वो भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए, दुनिया में कहीं भी हो. अब मेरा जैसे दोस्त है असफर और यासो, वो बैठे लाइव देख रहे हैं. क्रिकेट का कुछ नहीं पता, असफर को पता, यासो को नहीं पता, बट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान दे आर इन्वॉल्व्ड. असफर, यासिर, congratulations, you got a shout out on live TV on one of the biggest cricket shows in the cricketing world by the greatest all-rounding legend who happens to be your friend Wasim Akram. Nice plug, Wasim. I like it. Well done, well played. Late cut खेला आपने, gentle nudge. आराम से किसी को पता भी नहीं चला, कोई कुछ कह भी नहीं सकता, तो मैं पढ़ ली. नहीं सी लगना तू दास्ता सारे नु. I had to, man. There's no way I'm going to let you go. Let's talk about Pakistan's bowling now. थोड़ा सा एक चीज़ है कि एक टाइम पे यूँ लग रहा था इनके ये शायद 400, 370, 80 रन का टारगेट जो लग जाएगा.
Credit to the Pakistani bowlers, though we do have a lot of concerns for Pakistani bowling. लेकिन एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी बॉलिंग को कि आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने 61 रन दिए, उन्होंने पुल बैक किया श्रीलंका को। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या श्रीलंकन बैट्समैन थक गए थे रन ले लेके, या वो कुछ 61 रन उन्होंने क्यों किए? क्योंकि आपके बॉलर ने 5 विकेटें ली ऑन लास्ट 10 ओवर्स में। करेक्ट। एंड प्लस थोड़ा सा ना वो आई थॉट बैक ऑफ अ माइंड श्रीलंकन के जो बैटर्स थे उनके ज़हन में शायद ये भी आ गया हो कि वी डन, इट्स इनफ। सो मे बी उसमें थोड़ा रिलैक्स हो गए। यू सी अब वनडे में, पार्टनरशिप में, इवन T20 फॉर्मेट में अगर आप स्कोर एक ही तरीके से रोक सकते हो, विकेटें लो, लाइक यू सेड, वो विकेटें जब लोगे तो स्कोर रुकेगा, अदरवाइज स्कोर नहीं रुक सकता। बेसिकली मोमेंटम तोड़ दिया, विकेट लेने से मोमेंटम टूटता है, प्रेशर भी आप इसी तरह क्रिएट करते हैं। और पाकिस्तान बहुत लकी था, उनके कप्तान जो आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल, वो आए और उन्होंने काफ़ी गेंदे लिए, थोड़े से रन बनाए उन्होंने, 12 रन, लेकिन 18 गेंदे लिए उसको खेलने में। तो इट वाज बिट ऑफ बोथ। आप समझे कि हसन अली जब वापस आए हैं तो मेन बॉलर उन्होंने आउट किए हुए थे और मेंडिस बहुत अच्छा खेल रहे थे। मेंडिस ने मेरे 2 बाउंड्रीज मारी हैं और फिर मिड विकेट पीछे थी, लॉन्ग ऑन था एंड ही जस्ट वेंट फॉर दैट शॉट अर्ली ऑन। आप देखते हैं कि एक बॉलर का अच्छा दिन है, उसने अच्छी बॉलिंग की हुई है, उसने विकेट्स ली हुई हैं, तो देन एज अ सेट बैटर ये देखें यहाँ पे, और बाउंड्रीज आपको मिल चुकी है उस ओवर में। स्टिल अगर आप देखें कि कितने ओवर पड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जैसे पाकिस्तानी सेंसिबल खेला है, रिजवान अब्दुल्ला स्ट्रेच किया उस पार्टनरशिप को, अगर यहाँ पे मेंडिस थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करते तो ये टोटल 400 के करीब होना था। और पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान ने एंड पे अच्छी बॉलिंग की, रोका उनको, बट आई थिंक कि थोड़ा श्रीलंकन बैटर्स ने भी पॉइंट इमाम उल हक टुक अ ब्रिलियंट कैच आफ्टर जिस तरीके ड्रॉप हुआ था, सो क्रेडिट टू इमाम उल हक। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ लोग हमारे तो नहीं, जहाँ से भी थे, डजंट मैटर, कि जी इसने बाउंड्री पीछे की है इसलिए इसने कैच किया, बिकॉज पुरानी बाउंड्री का मार्क लगा हुआ था। अबे जीनियस हो, जो कल मैच हुआ था वो इस वाली विकेट पे था इसलिए बाउंड्री, या इस वाली पे था बाउंड्री इसलिए, वो पुरानी बाउंड्री का मार्क है। अब इमाम उल हक अकेला मैच के दौरान कहाँ पूरी बाउंड्री पीछे करेगा? मेरा मतलब है अन्य फारिग बैठे हुए हो सारे, उस ख्याल में से नहीं निकला होगा जो कैच ड्रॉप हुआ है। You see, that's it baffles me sometimes how human mind thinks. There are some people, Wasim, I think, and we should kind of discount their ability to understand these things. There are little complicated matters in the universe that they do not perhaps comprehend the way we do. Perhaps it happens. But let's go back to the Pakistani bowling. थोड़ा सा मैं शुरू में जाऊँगा शोएब. Let's talk about Shaheen Shah Afridi, and it looks like कि एक तो वो पेस वो वाला नहीं जनरेट कर रहे जो वो जनरली करते हैं और ट्रबल करते हैं. दूसरा ये कि आज अंदर आता हुआ गेंद जो था वो या तो it was not directed where he wanted it to go, and then there was a lot of erratic bowling on his part. What was going on there? Was it one of those off days, or do you think वो Netherlands वाले मैच में भी उनकी स्पीड नहीं जनरेट हो रही थी? Is he struggling with an injury? क्योंकि हमने जब देखा वो, आपने एक चीज़ वसीम बड़ी अच्छी नोट की थी कि वो बाउंड्री पे फील्डिंग करते वक्त उनको गालिबन रगड़ लगी तो उन्होंने अपनी ट्राउजर ऊपर की हुई थी, तो we could see bandages on his knee. What's going on with him? आई थिंक इट्स अ बिग कंसर्न, क्योंकि जब आप बिग टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे तो शाहीन जब ऊपर से विकेटें लेते हैं तो वो बहुत जो टारगेट है वो नीचे आ जाता है या डिफेंड कर रही हो टीम. तो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. आई गेस द राइट वे टू गो अबाउट इट कि शाहीन शुड टेक द इनिशिएटिव और वो फिजियो के साथ बैठें और जो है जो ट्रेनर हैं उनके साथ बैठें, क्योंकि मार पड़ जाना, अच्छी बॉलिंग नहीं होना वो गेम का हिस्सा है, लेकिन पेस सिर्फ 81, 82 या 83 पे रहना वो एक बिग कंसर्न है. ठीक है, आप इंजरी से आए हैं, इट टेक्स टाइम, लेकिन एटलीस्ट 84, 85 माइल्स पे बॉलिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है. एवरेज स्पीड उनकी आनी चाहिए. हमने देखा है, मैंने भी उसे शाहीन को खेला हूँ, उसका फर्स्ट बॉल ही जो है ऑफ द मैच वो 145 आता था इन स्विंगिंग यॉर्कर, वो नहीं आ रहा, 140 पे भी नहीं जा रहा वो. तो आई गेस इट्स अ बिग कंसर्न, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, ये बड़ी टीम्स हैं. तो आई गेस थिंक टैंक को जो है उसके साथ बैठना चाहिए और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए कि किस वजह से वो जो पेस जनरेट होती थी इंजरी से पहले वो अब बहुत कम हो गई है. ये एक कंसर्न है. Should be back of his mind because it's his front knee. Yes. So बॉलर की जब फ्रंट नी में इंजरी आती, मुझे तो नहीं कि अल्लाह का शुक्र है कभी इंजरी नहीं हुई, बट इसका तो है भी जंप, एंड ही 6 फुट 6 गाय.
सो जब बॉलर को फ्रंट नी पे होती है तो वो 100% एफर्ट आती नहीं है कि अभी ना चली जाए, अभी ना चली जाए। मे बी दैट कुड बी इट। वसीम भाई, अगर आप देखें तो एशिया कप में इस पेस से ज़्यादा पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे। या तो इसका मतलब है कि इंजरी के बाद वो वाला एलिमेंट तो ख़त्म हो गया कि मेरी दोबारा से नी जो है वो फिर से ना चली जाए। तो ये एक कंसर्न ज़रूर है आई गेस। जब 4 लोग बैठते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। कुछ वो अपना बताएंगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ बॉलिंग करते हुए, कोई फिजियो बताएगा, ट्रेनर बताएगा, या जो भी वहाँ पे बहुत बड़ा पैनल है हमारा मेडिकल का भी। क्या लफ्ज़ यूज़ किया तूने उर्दू का? क्या लफ्ज़ यूज़ किया था उर्दू का? डॉक्टर का? तबीब को दिखाना चाहिए। तबीब, हकीम, सही है आप, बिल्कुल सही आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग जा रहे थे वर्ल्ड कप में तो वी वर डिपेंडिंग अ लॉट ऑन शाहीन एंड हारिस, राइट। लेकिन अगर आज के मैच को देखा जाए तो जिसमें हसन था, जिसमें शादाब था, या जिसमें इफ्तिखार था, या नवाज था, उन्होंने ज़्यादा बेहतर बॉलिंग की ऐसे। तो इसलिए अब नसीम नहीं है, तो ये हमारे सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट हैं मेरे ख्याल में, और इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, बैठना चाहिए ताकि उसकी जो पेस है एटलीस्ट वो 85-86 माइल्स पे जानी चाहिए, स्पेशली अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल। मुझे एक चीज़ और नज़र आई है जो ओवरऑल सिर्फ शाहीन नहीं, मुझे एक और चीज़ जो फील्डिंग में भी नज़र आई है, इंटेंसिटी में नज़र आई है, जैसे आपकी टीम फटीग्ड होती है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये आपने मिड ब्रेक में भी बोला था जब हमने बॉलिंग खत्म की थी अपनी। पिटाई ज्यादा हुई है, इस वजह से भी थोड़ा बॉडी लैंग्वेज जो था, नहीं पिटाई तो बहुत एशिया कप में 3000 के कितने आप स्टार्ट जब करते हैं इनिशियल ओवर्स तो उसमें एक नज़र आता है कि फील्ड आप आ रहे हैं, ठीक है, हेड्स डाउन होते हैं, कई दफ़ा मार पड़ती है। इनिशियली तो आप आते हैं, इंपॉर्टेंट मैच आपको पता ही है आपने जीतना है, और ये टीम ऐसी है जिससे आपने जीत के आगे चल के इंडिया के अगेंस्ट या बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना है जो कि और ज़्यादा तगड़ी टीम है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए लपकते हो उसकी तरफ। तो इनिशियली वो एनर्जी लेवल क्यों नहीं, वो फटीग क्यों लग रहा है मुझे, फील्डिंग में भी उस तरीके से, मतलब वो इंटेंसिटी उस तरीके से नहीं आ रही। नया बॉल जब मिसबा मेरा ख्याल है जगह पे नहीं गिरता, आज जो शाहीन से वो कहीं कोशिश उसने बड़ी की है कि मैं किसी तरह लाइन मेंटेन करूँ, लाइन ऑफ लाइन हो रहा था, कभी ऑफ स्टंप के बाहर या कभी लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रहा था। एक में भी शायद थोड़ा सा मैं कहूँगा क्योंकि हाँ बात खत्म कर लो। वार्म अप मेरा ख्याल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिफोर एवरी मैच। एज अ बॉलर आप ज़रूर इसको so, जब लेफ्ट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर नए गेंद से अराउंड द विकेट आता है वाइट बॉल में, मेरे ख्याल में उसका मतलब ही होता है कि उससे बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा एज मच फ्रॉम अराउंड द विकेट। हैंस जब मैं भी अराउंड द विकेट आया हूँ अर्ली ऑन नए गेंद से, इसका मतलब जब मैं वर्ल्ड कप 92 के फाइनल में मैंने बोथम को अराउंड द विकेट आउट किया, मुझे क्रैम्प्स पड़े थे ओवर द विकेट से, अराउंड द विकेट से, इसीलिए मैं अराउंड द विकेट आया था कि मेरा वाइड ना हो, कम से कम इस एंगल से बॉल विकेटों में ख़त्म होगा। वो तो लकीली विकेट मिल गई, बट बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कंट्रोल नहीं था और इसलिए वो अराउंड द विकेट गया था, शुरू में चला गया था। Yeah, he was having some issues, there was some niggle, some problem that's going on. We're worried because we want Shaheen Shah Afridi to shine. He is the most potent weapon that we have in our arsenal right up front, especially जो अगला बड़ा मुकाबला होने लगा है, इसलिए we really want him to fire, we want him to be super fit, and we want the think tank to make sure कि उनकी proper तरीके से जो है वो care की जाए between now and the rest of the World Cup as we go and progress in this tournament. Shoaib Malik, you were saying कि आपको शाहीन शाह अफरीदी की स्लो बॉलिंग की वजह मत पता चल गई, क्या वजह? नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं तो क्लेम तो आपने ऐसे ही किया था जब आप पैकेज चला रहे थे कि मुझे खबर आ गई। ड्यूरिंग एशिया कप गुल एक प्लेयर हैं अफगानिस्तान के, उनका कैच करते हुए उनकी बॉलिंग फिंगर पे जो है बॉल लग गया था, वो इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से बॉल से इसे ग्रिप नहीं हो पा रहा और इसकी वजह से वो पेस जो है जो जानी चाहिए। उंगली के लिगामेंट यहाँ कभी ऐसे बॉल लगे ना आपको डायरेक्ट, तो ये आपके लिगामेंट जाते हैं साइड से, लिगामेंट को ज़्यादा देर लगती है ठीक होने से बजाय कि हड्डी जुड़ने में। राइट बिकॉज क्रिकेट में तुझे तो, आपको तो बहुत हुआ होगा, विकेट कीपिंग करते थे, हमें भी हुआ, फील्डिंग में यहाँ लग गया बॉल, ग्रिप नहीं होती, यहाँ लग गया ग्रिप नहीं होती बॉल, सो इसलिए कंट्रोल नहीं आता। एक्स्ट्रा लुक आफ्टर करना पड़ेगा हमारी मेडिकल टीम जो है उनको। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन विद अस शोएब मलिक, और अगेन हम दुआगो हैं कि जल्द से जल्द जो है वो शाहीन का जो इंजरी है वो इसको ये हील हो, और हमारी मेडिकल टीम है पाकिस्तान टीम के साथ वो इसको
सही तरीके से अटेंड करे एंड दैट शाहीन इज गुड एंड रेडी टू फायर इन द नेक्स्ट गेम। काबली पुलाव खिलाएं उसको, ठीक हो जाएगी। काबली पुलाव तो हमने दोनों छोड़ोगे किसी के लिए, आप लोग आज छोड़ो, हमारे लिए नहीं छोड़ते। बहुत काबली आज से रोटी खुआ मार देता है। यकीन तुम लोगों ने, हम लोगों ने कहा अबे नाश्ता किया है, फिर 10 बजे चने और पाए मंगाए हैं तुम लोगों ने। वो ऐसे ही थे ना भाई, लोग नाश्ता करते हैं उसके बाद कभी बिरयानी छोड़ के ना 2-4 दिन काबली पुलाव खाए फिर देखें। वसीम भाई स्टूडियो के बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए इन दोनों की वजह से। We're going to take a break on that note in the pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the pavilion. We're having a lot of fun behind the scenes right now because it's such a great evening here, celebrating the victory for Pakistan. This is what we wanted. We wanted some good news. We did defeat Netherlands, but there was always that question that, you know, was it a good defeat or so forth. मार ना दीजिएगा यार, एक तो ये बड़ी टेंशन लगी रहती है। All right, good. See, I told you the boys are in a good mood. That's the way to do it. Yeah, तेरी ऐसी. Yeah. तेरी ऐसी. Okie dokie. Thank you, sir. You can keep it. You can play with it. It's okay. It's okay. You've played with it all your life. Yeah, I did actually. Yes, there you go. That's it. It belongs in those hands. अभी भी खेलते रहते हैं बॉलों से वसीम भाई। Right, let's get back to the game that we've had now. We were talking about पाकिस्तान की बॉलिंग जाने से पहले शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के बारे में हमें जो है वो मालूम हो गया है कि उन्होंने कैच करते वक्त गिल का कैच, वो गुल नहीं है, गिल, शुभमन गिल जो वर्ल्ड कप से जो आउट है। आपने बोला था जो मैंने बड़ी तेज नहीं, मेरे पास मैसेज आया था, गलत आ गया था मैसेज। उन्होंने गुल लिख दिया, टाइपो मिस्टेक, लेकिन वो उन्होंने गिल ही लिख दिया। उमर गुल खेल रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, क्या हो रहा है क्या? ठीक है, एशिया कप के मैच का। That's yeah. And talking about Shubman Gill now, I'm wondering, I've heard some news कि उनको गालिबन वापस अस्पताल ले गए थे। Yeah, I believe कि हॉस्पिटल में जो मैंने आज पढ़ा था, I don't know if official or not, आजकल तो सोशल मीडिया पे झूठी खबरें चल रही होती हैं। You never know. So yeah, we ये have कहा to था कि vet it. दोबारा हॉस्पिटल गए हैं, maybe he'll miss half of the World Cup. I hope not, because he's a very good player. Yeah, and very very important for the equation of the Indian batting Yeah. lineup. I mean, he's the एक दफा मिसबा को भी हो चुका है डेंगू, बहुत रिकवरी बहुत ही मुश्किल होती है। तो मच्छर बच गया सी। नहीं, मिसबा was actually explaining that after he's got dengue कि जान वो कैसे निकाल लेता है। जी मिसबा जरा थोड़ा उस पर रोशनी डाल दें। वो लोग जिनको डेंगू नहीं हुआ उनको जरा एक अंदाजा नेचुरली अभी सब आस लगाए बैठे होंगे ना शुभमन गिल की वापसी का ध्यान देनी चाहिए। मेरे ख्याल में एक दफ़ा ऐसे आपको फील होता है, फर्स्ट 6 डेज जो है वो मिजरेबल कंडीशन होती है आपकी। आपको ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना अपने आप से नफरत हो जाती है, क्योंकि आप ना कुछ खा सकते हैं, बॉडी में इचिंग, पेन हर टाइम आपको, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं बुखार के लिए तो हाफ एन आवर एंड देन अगेन इट जस्ट स्टार्ट अगेन। एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। आप इवन सोते हुए बेड पे आपको लगता है कि अभी शुभमन गिल का आपको लगता है वापस कमबैक इस टूर्नामेंट में कर सकते हैं, वो रिकवरी हो जाएगी? मोइन भाई डिपेंड करता है उस पर, बड़ा टाइम इस पर लगता है। आपको 10 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आपकी रिकवरी शुरू होती है और फिर 10 दिन के बाद आप थोड़ा बहुत जो है ना आपको को फील होता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे तो काफ़ी टाइम लगा था। आपके प्लेटलेट्स जो है वो वापस आने में टाइम लगता है, आपको फ्लूइड्स लेने पड़ते हैं और उसके बाद ऐसी मतलब टफ सिचुएशन में ऐसी क्रिकेट, और ये 7 घंटे का मैच है, 3.5 घंटे की आपकी फील्डिंग है, फिर आपने ओपनिंग करनी है, तो यू नीड अ लॉट ऑफ फिटनेस आफ्टर दैट। वेल आवर प्रेयर्स। आपने पूछा मिसबा भाई से कि शुभमन गिल सही हो जाएंगे, वो उनके डॉक्टर हैं। नहीं, उनको हुआ था ना इस वजह से रिकवरी टाइम कितना लगता है। He's gone through it, so we were just thinking. But our prayers for Shubman Gill. I hope that he recovers and he's back in this World Cup, because cricket fans around the world would love to see him bat. You know, gentlemen, one of the most interesting things that I noticed today कि आज ग्राउंड में क्योंकि इंडियन फैंस ज़्यादा मौजूद थे वहाँ पर पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में, लेकिन आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू से दैट देयर वाज इक्वल सपोर्ट फॉर बोथ साइड्स। दे वर अप्रिशिएटिंग एवरी शॉट, एवरी विकेट। And right, Moin, let me bring this to you. The way forward for Sri Lanka. आज की डिफीट के बाद, now they've got 2 defeats. एक तो साउथ अफ्रीका से हारे, फिर आज ये वाला मैच हारे. What do they do next? I think मॉरली डाउन तो होंगे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े मैच हारे हैं। एक जगह उनकी बॉलिंग ने 400 रन बनवाए, 428 रन बने, और फिर आज एक बहुत ही मेगा चेज जो पाकिस्तान ने उनके खिलाफ की। नेचुरली
एज अ टीम डाउन ज़रूर होंगे, बट जो गुड चीज़ नज़र आ रही है, जो अच्छी चीज़ है, वो एटलीस्ट बैटिंग में फॉर्म है लड़कों की। कुशाल मेंडिस जिस तरह आज इनिंग खेली है, सदीरा ने इनिंग खेली है, तो गुड साइंस भी है, पॉजिटिव्स भी हैं। आई थिंक यहाँ से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगले मैचेस के लिए। और एक मुझे जो एक नज़र आ रहा है, जो खला जिसे कहते हैं वैक्यूम, वो इनकी बॉलिंग में तीक्ष्ण एक जैसे इनके बॉलर हैं। अगर इस टूर्नामेंट के अंदर हसरंगा यहाँ पे होते जो कि एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो मे भी उनको ज़्यादा बेहतर उनकी परफॉर्मेंसेज हो सकती थी एज अ बॉलिंग यूनिट। तो बॉलिंग में मुझे कहीं ना कहीं पे एक वैक्यूम नज़र आ रहा है। आज भी मैच में हमने देखा 7 बॉलर्स को यूज़ करना पड़ा उनको। तो एक जेन्युइन स्पिनर और एक बेहतर फास्ट बॉलर की यहाँ पे जो कि स्ट्राइक बॉलर हो, विकेट टेकिंग बॉलर, क्योंकि विकेट टेकिंग कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो वो मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बैट्समैन पे आएगी, क्योंकि उनको पता है अब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप तो आप किसी को टीम के अंदर ला नहीं सकते अनटिल अनलेस कोई अनफिट हो जाए, देन आप किसी को लेके आएंगे। तो वे फॉरवर्ड मुझे ऐसे ही लगता है कि ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बैटिंग को उनकी। लेट मी जस्ट क्विकली आस्क यू शोएब, मधुशंका जो कि आज इनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे, 2 उनको अर्ली विकेट्स उन्होंने दिलवा दी थी, फिर 11वें से 30वें ओवर तक उनके कप्तान ने उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? व्हाई? आई मीन ही वाज योर टॉप बॉलर एंड व्हेन यू नीडेड यू कुड हैव यूज्ड हिम अ लिटिल अर्लियर। आई थिंक जब आपने स्कोर किए हैं वो 345, तो आप एंड का सोच रहे होते हैं कि हमें डेथ ओवर्स में भी बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो उस टाइम पे क्रंच सिचुएशन में जब मैच जाएगा अच्छे बैटिंग ट्रैक पे तो ज़रूरत पड़ेगी। बट आपको जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, आप you're always out of the game. You're always out of the game. राइट दोस्तों, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं आस्क द पवेलियन का हैशटैग आस्क द पवेलियन, ताकि आपके सवालात, आपकी कमेंट्स, आपके ओपिनियंस हम यहाँ पर शेयर कर सकें अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो वी गोना ब्रिंग आउट ऑल द आस्क द पवेलियन क्वेश्चंस, बट आफ्टर दिस ब्रेक, डोंट गो अवे। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी AOY's ऐप विद मी शोएब मलिक, मिसबाह, मोइन खान एंड वसीम अकरम। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे हैदराबाद में पाकिस्तान का मैच लंका से, जो पाकिस्तान ने जीता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आज तारीख रकम की है, चेस्ड द बिगेस्ट टोटल एवर पोस्टेड इन अ वर्ल्ड कप मैच। वेल डन टू टीम पाकिस्तान एंड वेरी वेरी हैप्पी। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट गेम दैट वी हैड टुडे। धर्मशाला में आज पहला मैच हुआ था, इंग्लैंड बा मुकाबला बांग्लादेश। ये आपकी मैच की जो समरी है स्क्रीन पे लेकर आते हैं आपके सामने। सूरत हाल कुछ इस तरीके से हुई थी कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी और 364 रन बनाए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मलान की बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सेंचुरी, 140 रन उन्होंने बनाए। जो रूट देयर विद एन 82, बेयरस्टो विद 52 एंड बटलर विद 20। It was not so good for Bangladesh in response. Only Litton Das came to the party and Mushakur for his 51. And Topney, जिनको आज लाया गया खास तौर पे, took 4 wickets right up top, destroying the top order of Bangladesh. England winning this one by 137 runs. So the defending champions are back in action. Let's start off with you, Moin. Tell us about this game. What do you think happened there with Bangladesh? Well, I think पहली तो बात है कि इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, नो डाउट, ठीक है। आई थिंक जो नया बॉल था, मेरा नहीं ख्याल है कि आज इतना अच्छा कर सकें। जो एक्सपेक्टेशन थी टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड को उन्होंने बैटिंग की दावत दी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट दिया बॉलर्स ने। जो हमने पहला ओवर देखा तो उसमें नज़र आया था कि थोड़ा सा अच्छा गेंद किया मुशफिकुर रहीम ने, बट एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद की, जिसकी वजह से जिस तरह मलान ने बैटिंग की है, 140 रन आई थिंक उन्होंने जो बनाए, आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। उसके साथ जो पार्टनरशिप हुई है जो रूट की, पार्टनरशिप्स इतनी बड़ी पार्टनरशिप है, और हमने जो बांग्लादेश की देखी है इनिंग, उसके अंदर कहीं भी पार्टनरशिप नहीं लगी। आउटस्टैंडिंगली आज बैटिंग देखी है, क्योंकि इस मैच में जो पिच की प्रेडिक्शन थी उस पर यही था कि रन्स कम बनेंगे जो भी पहले टीम खेलेगी, और जिस तरह इंग्लैंड ने प्रोग्रेस किया, उन्होंने एक दफ़ा फिर टूर्नामेंट में बता दिया दूसरी टीमों को, रेडी किया है कि हम वी आर बैक इन द गेम, एक फॉर्म नजर आई है उनकी। After that setback against New Zealand, I think they're now set. Where do you think, Shoaib, that the Bangladeshi bowlers were lacking? Planning I think overall they have covered with pace and spin, क्योंकि उनके पास
जो बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, शोरफुल इस्लाम, ये उनके पेस बॉलर हैं। और जैसे उनके पास स्पिनर हैं जो आज उन्होंने एक डाला था मेहंदी हसन, जिन्होंने आज 4 विकेटें भी ली, बट थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। 71 रन्स दिए उन्होंने 8 ओवर्स में। शाकिबुल हसन, मेहंदी हसन, मिराज, तो उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी कंडीशंस में वो उनका अटैक जो है किसी भी टीम को जो है वो कर सकता है। एज मोइन भाई सेड कि उन्होंने रूम दिया। और ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट द वे जॉनी बेस्टो एंड डेविड मिलान दे स्टार्टेड द इनिंग्स। जब आपके पहले 3 बैटर्स, वो एक ने 52 किए, जॉनी बेस्टो ने, डेविड मिलान ने 140 किए, जो रूट ने 82 किए, तो आप कभी भी गेम के अंदर नहीं आएंगे, हमेशा गेम को कैच करते रहेंगे। तो आई गेस इसीलिए फर्स्ट 3 बैटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इंग्लैंड ने पहले इंग्लैंड ने पहले 10 ओवर में 37 डॉट बॉल खेले और 61 किया। नॉर्मल क्रिकेट, अच्छा नया बॉल उन्होंने अच्छा किया, थोड़ा उसका मुस्तफिजुर का बॉल स्विंग भी अच्छा, बार लेफ्ट आर्म को निकला नहीं, उसने नया सीखा है। उसका पहले अंदर आता था लेफ्ट आर्म को, अभी उसने नई एक सीखी है। दैट्स वेल डन टू यंग बॉय। ही वेंट फॉर 70 रन्स, बट इंग्लैंड ऑब्वियसली रिगेनिंग चैंपियंस हैं। वाइट बॉल क्रिकेट का उनका डिफरेंट माइंडसेट है। जब 10 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 61 किया, तो उसके बाद उनकी पहली विकेट गिरी 115 पे, दूसरी विकेट गिरी 226 पे, तो तब तक तो ये गेम ले चुके थे। इट वाज जस्ट टू मच। आई थिंक जो सबसे बड़ा बांग्लादेश इस टाइम मिस कर रहा है वो तस्कीन अहमद की फॉर्म विद द न्यू बॉल है। He was bowling well about Asia Cup. वो विकेटें लेता हुआ आ रहा है बहुत। उसने पिछले कुछ अरसे में ही इज द गो टू बॉलर फॉर देम। वो मेन विकेट टेकर था, और यहाँ पे आके नए बॉल से वो विकेटें नहीं ले रहा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और इंग्लैंड की टीम, जैसे मलिक ने कहा कि इंग्लैंड को अगर स्टार्ट मिल जाता है और पहले 10 ओवरों में कोई आउट नहीं है, तो देन हमें पता है उनकी जो बैटिंग लाइनअप है जिस किस्म, फिर उन्होंने सेटल ही नहीं होने दिया। उनको ऑन द अप शॉटें मारी हैं और ऐसी ऐसी वो शॉटें खेलते हैं। डेविड मिलान ने जो पिकअप शॉट्स मारे हैं, आई थिंक वो अच्छे बॉल थे। मुस्तफीज़ को वो अच्छे बॉल थे जिनको उन्होंने ऐसे शॉट मारकर वो टोटली अंडर प्रेशर कर दिया। Yes, so that's really interesting thing. इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि anything else you guys want to add to this game, because I think England has kind of started their campaign now after the एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बांग्लादेश बैटिंग पे बात करनी चाहिए। लिटन दास उनके आउट ऑफ फॉर्म थे काफ़ी टाइम से, लेकिन आज उन्होंने रन्स बनाए। ही स्कोर्ड 76 रन्स, प्लेड 66 बॉल्स। उसके बाद देखें तो हसन, फिर शांतो, शाकिबुल हसन, मेहंदी हसन, मिराज, ये 1-0-1-8, ये बहुत बड़ा जो है गैप आ गया, पार्टनरशिप लगी नहीं। उसके बाद जो है मुशफिकुर रहीम ने 51 रन्स की इनिंग्स खेली। नो डाउट वो बहुत बड़ा टोटल था, लेकिन ये जो बीच के बैटर्स थे, अगर ये भी रन्स बनाते तो एक अच्छा जो है वो टफ टाइम जो है बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड को दे सकती थी। See, Bangladesh is not to be a team that can be taken easily. I mean, on a spinning track, and we all know कि होम सीरीज में, बल्कि अब तो रिसेंटली उन्होंने अवे सीरीज में भी जो है वो बड़ी बड़ी टीमों को तंग करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के लिए एक और चीज़ जो अच्छी हुई, आज टॉपली को उन्होंने खिलाया था और टॉपली ने आई थिंक आउट क्लास बॉलिंग की है, तो ये एक और अच्छा इंग्लैंड के लिए एक एडिशन होगा। आगे मैच उनको चाहिए, एज अ 5th बॉलर चाहिए था, और नेचुरली कॉन्फिडेंस मिलता है जिस वक्त आप आउट करते हैं। लेफ्ट हैंडर्स को ऊपर से ही ले गया, क्योंकि बड़ा अच्छा शेप बनता उनका। 4 विकेट आई थिंक उनको लाई इसलिए थे, knowing the Bangladesh top order. Well, anyway, congratulations to the defending champions England for winning that game. Good luck to Bangladesh in their next games. There's still a lot of tournament left ahead to change your fortunes, and good luck to all the Bangladeshi players and to the Bangladeshi fans. It ain't over till it's over. With that, we move on to #AskThePavilion. वक्त आ गया कि आप लोगों के सवालात, आप लोगों के पैगामात जो है हम यहाँ पर शेयर करें। ये पहला सवाल आया है, मैं ले रहा हूँ मोहम्मद दानियाल खान का। मोहम्मद दानियाल खान कहते हैं आस्क द पेविलियन में कि अहमदाबाद में, अंग्रेजी में उन्होंने सवाल किया है, मैं इंग्लिश में ज़रा उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि अहमदाबाद में इंडिया जो है वो कुलदीप पर बहुत हेविली रिलाई करेगा। हाउ शुड पाकिस्तान प्लान टू टैकल कुलदीप थ्रेट? शुड दे अटैक हिम और प्ले हिम आउट? Question for Misbah and Shoaib Malik. मेरे ख्याल में पॉजिटिव इंटेंट बड़ी ज़रूरी है आपकी। जो मर्जी आप अगर कहेंगे कि हम इसको बस खेल लें इसके 10 ओवर, तो देन ही इज़ गोइंग टू टेक द विकेट्स। प्रेशर आप पे बिल्ड होगा। बड़ा ज़रूरी है किस पेस पे बॉल कर रहे हैं, ट्रैजेक्टरी क्या है, क्या हम फीड यूज़ कर सकते हैं, स्वीप शॉट खेल सकते हैं।
कुछ ना कुछ आपने रिलीज शॉट या अटैकिंग ऑप्शन अपने जहन में ज़रूर रखना है, अदरवाइज इफ़ यू लेट हिम बॉल देन वो कहते हैं ना यू आर अ सिटिंग डक, फिर वो उस जगह से अच्छी जगह से अगर उनका बॉल दोनों तरफ घूम रहा है और बीच में वो फ्लिपर भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, then it is going to be a challenge for Pakistan. एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपने उनके अगेंस्ट खेलना है और अगर आपको सक्सेस चाहिए एज अ बैटर, जो कि मैंने ली है उनके अगेंस्ट जब भी मैं खेला हूँ, अगर देखें तो उनका बॉल जो है वो विद इन स्टम्प्स रहता है, जो उनका कन्वेंशनल बॉल है, जो वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं वो स्टम्प्स में ख़त्म होता है राइट हैंडर के अगेंस्ट। जो वो स्लाइडर करते हैं वो आउटसाइड ऑफ स्टंप 4th या 5th स्टंप पे वो फिनिश होता है, या वो जो गुगली भी करते हैं अपनी, वो ज़्यादा टर्न नहीं होती है, वो भी 4th या 5th स्टंप पे वो ख़त्म होती है। तो मैं डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलता हूँ क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो उनको थोड़ा लूप के साथ बॉल करना पड़ता है आगे गिराने के लिए, तो वो आप उसमें फीट यूज़ करके उनको डाउन द ग्राउंड खेल सकते हैं। और उसके लिए पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना, गुगली कर रहे हैं, फ्लिपर कर रहे हैं, अगर वही समझ नहीं आएगी तो निकलोगे कैसे? इसलिए ना वसीम भाई सम टाइम मुझे भी नहीं समझ आती, लेकिन डाउन द ग्राउंड का मकसद ही ये है कि उनका जो स्लाइडर है और जो उनकी जो गुगली है वो ज़्यादा टर्न नहीं होती है, तो जब आप डाउन द ग्राउंड जो है वो टारगेट करते हैं तो आपको एडवांटेज होता है। ये तो मैं डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलता हूँ, लेकिन एज अ बैटर कुछ लोग होते हैं वो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, तो जैसे मिसबा भाई हैं वो स्वीप खेलते हैं उनको, तो अपनी गेम को बैक करें बजाय ज़्यादा फोकस करें कि मुझे हाथ नहीं चेक हो रहा या इस तरह। वीडियोस आप ज़रूर देखें लेकिन अपनी गेम को बैक करें, इसी तरह सक्सेस मिलेगी। बहुत ज़रूरी है। अली अम्मार का सवाल है मिसबा उल हक आपसे कि दिस विन विल गिव अ ह्यूज कॉन्फिडेंस टू द टीम, बट वुड इट बी इनफ टू लिफ्ट आवर बॉलर्स कॉन्फिडेंस फॉर द बिग गेम on Saturday? Maybe they'll get breathing space knowing that batters can handle the big total. देखिए, जीतने के बाद आपको हमेशा देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो बड़ा ज़रूरी है। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, और ऐसी जीत कि आपने इतना बड़ा टारगेट चेस किया है बट स्टिल आपने देखना है कि कहाँ हमने इम्प्रूव करना, और मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए कि देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर पाकिस्तान टू इम्प्रूव इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट। अपने प्लान्स को कैसे बेहतर अंदाज में बनाना और एग्जीक्यूट करना है, फील्डिंग प्लान्स को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना है अगेंस्ट इंडिया बड़ा ज़रूरी है। कौन सा बैट्समैन कहाँ खेलता है, उसके लिए कौन सी फील्ड ज़रूरी है, किस बॉलर पे हमने किस किस्म की फील्डिंग लेनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। एंड देन फील्डिंग में भी हम इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज जो मेरी सजेशन है टीम को, कि क्या करना चाहिए टीम को बिल्कुल जो मुझे नज़र आया है, बहुत फटीग टीम एक स्केड्यूल से आ रही है, एशिया कप खेला है, ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी आई थिंक बिल्कुल ईजी ले, रेस्ट करें, प्रॉपर रिकवरी सेशंस करें, डोंट वरी फॉर द गेम कि हमने को प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज रिकवरी सेशन? रिकवरी सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने पूल सेशंस करने हैं, उसके बाद अच्छा अपने आप को फ्लूइड इनटेक, बड़ा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी गर्मी है तो वो बड़ा ज़रूरी है, रिकवर करना है, कार्ब्स आपने लेने हैं, अपने आप को लोड करना है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी हैं वो डिफरेंट आपके साथ वहाँ पे हैं लोग, रिकवरी, और अपने आप को मज़ीद थकाना नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जो चीज़ है स्ट्रेटजी, कि हमने किस तरीके से, मुझे लगता है कि आज भी हम बहुत बेहतर कर सकते थे अपने फील्ड प्लान्स में, चाहे वो फास्ट बॉलर है, शुरू के ओवर्स हैं, मिडिल के ओवर्स हैं। शादाब पे हमने पहले भी बात की है कि आप अगर ही इज़ नॉट कंफर्टेबल मिड विकेट ऊपर रखने से, तो आप मिड ऑन ऊपर रखें, मिड विकेट पीछे रखें, थोड़ा डिपेंडिंग ऑन द बैट्समैन, और उसको इनकरेज करें कि स्टम्प टू स्टम्प बॉल करे। उसके आज भी अगर आप देखें, परसेंटेज हमारे पास नहीं है, बट मुझे लगता है कि मोर देन 70% या 70% बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टम्प हैं, क्योंकि वो वरीड है मिड इस वजह से जहाँ वो बॉल गिराना चाह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म भी है और मिड विकेट ऊपर है, तो इवन उसको वहाँ से भी शॉट लगते हैं, तो आई थिंक वी कैन इम्प्रूव। आई हैव अ क्वेश्चन, गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम कनाडा, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा, उनका नाम है हसन, थैंक यू हसन। Ask the Pavilion question, would it be better to play Fakhar against India instead of Imam to have that X factor on the top who can change the game if it gets going?
हाँ जी, या तीनों से वो तो घुसे हुए हैं अपने। मेरा तो वैसे नहीं बनता नहीं है जवाब देना। पाकिस्तान मेरा तो वैसे नहीं कोई जवाब नहीं बनता तेरे पे आना ही था अनलेस अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फखर एज इन मी वांट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, नहीं भाई मैं इधर ही पेविलियन में पूछूं, वो आप लोग आपस में तय कर लेंगे किसको खेलना चाहिए। आज एक जीत हुई है, नेशनली कॉन्फिडेंस मिला होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इस टीम को अभी छेड़ना चाहिए या चेंज करना चाहिए यहाँ पे। फखर नो डाउट एक एक्स फैक्टर तो है, यू नो, बट इमाम को मेरा ख्याल है कि देना चाहिए। और एक दो इनिंग है उनको देनी चाहिए। हसन, अ वेरी गुड एंड सेंसिबल क्वेश्चन, बट आई एग्री विद मोइन के दे जस्ट वन अ बिग गेम, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड 340 प्लस दे चेस किया है, बड़े आराम से 2 सेंचुरी की हैं। सो अब यू नो मैच बाय मैच टीम चेंज करना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। स्टिक विद इमाम। ओके राइट जनाब, सत्या प्रकाश ने मैसेज भेजा है वसीम, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट टुडे, स्पेशली मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली, कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। वाला ओके, जस्ट अ कंग्रेचुलेटरी मैसेज टू यू स्पेसिफिकली फ्रॉम सत्या प्रकाश, शुक्रिया सत्या, वी रियली अप्रिशिएट दैट। सवाल आया है जनाब उस्मान अली भट्ट से। उस्मान अली भट्ट का सवाल है कि विल टीम पाकिस्तान बी ट्रैवलिंग फॉर द नेक्स्ट मैच एंड विल दिस ट्रैवल टेक टोल ऑन देम? So they are going to, so they'll go from Hyderabad to Ahmedabad, which is not, I don't think, a very long. It's not. It's for an hour, just over an hour flight, maybe less. I'm not so sure. But it's the whole jing bang. होटल से 4 घंटे पहले निकलो, लगेज रात को दो, एयरपोर्ट पहुंचो, फिर फ्लाइट से उतरो, होटल पहुंचो 2 घंटे में ट्रैफिक और पुलिस होगी एस्कॉर्ट, एंड देन वेट फॉर योर लगेज टू कम. सो इट टेक्स अ टोल ऑन यू. बट अगेन दे हैव 3 days off. They probably travel tomorrow. And then 14th. relax and then just take a chill pill. There's no need to practice. I won't practice. ये अभी आप एक मिसबा बात कर रहे थे, सॉरी, I'm going to just step away from this and ask you this. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि फटीग और फटीग से लड़ने के लिए वो करते हैं, आपको रेस्ट सही लेना चाहिए. Sometimes when you have a really big game, and like अब पाकिस्तान की अगली गेम जो है, it's a big game, it's in India Pakistan, the arch rivals come face to face. एक रात पहले बहुत सारे लोग, it's like, you know, do you have anxiety at night and you're tossing and turning in bed and you don't get proper sleep? क्या वो भी टॉल लेते हैं आपके ऊपर? Does that take a toll on his play? Man, I was young जब हमारा, आप लोग तो आप चारों ही खेले हुए, so you guys would know, you know. एक रात बड़ी बुरी थी. होती तो बहुत सारी हैं, मैच डोंट परफॉर्म वेल या मैच आप हार जाएं. वो 2007 वाला वर्ल्ड T20 हो. ये जो किया ना, ये जो किया है, ये बड़ा तो मैच के बाद थी ना. मैं मैच से पहले पूछ रहा हूँ. मैच से पहले भी तो बहुत सारे यंग लड़कों को एंजाइटी होती होगी. I mean, how would you tell them to calm themselves down, you know, and get that sleep? I think this day and age, the only, I mean, advice I can give to Pakistani team is to just try to stay away from social media to start off with, because India में ये सारे इकट्ठे होंगे, एक होटल में होंगे, they're like a family, they know each other very well. Just try to stay away from social media as much as you can before the game. I'm not saying कि 3 दिन रुक जाओ, मर जाओगे नहीं थे, but just day before take a break. 92 में जो सेमीफाइनल था हमारा, उसमें मैं और इंजमाम रूममेट थे, तो दोनों को नींद नहीं आ रही थी. यू नो, बड़ा मैच था. ऑफ कोर्स इंडिया के खिलाफ तो नहीं आती थी, हमेशा 2-3 घंटे की नींद लेते थे. बट उस पर्टिकुलर मैच के अंदर तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि इंतखाब साहब जो हमारे कोच थे उनके पास चलते हैं यार, कोई उनसे बात करते हैं. तो स्किप के पास जब गए तो स्किपर ने हमें ना एक टैबलेट दी, और उन्होंने कहा ये मसल रिलैक्सिंग टैबलेट है. मुझे और इंजी को, हम दोनों ने खा ली. थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई. मेरी एकदम 3 बजे आँख खोली. ये वही मैच है फेमस इंजी का, जहाँ से इंजी बिकेम अ हीरो, यू नो, जिस तरह वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी. आपको फौरन नींद आ गई? थोड़ी देर बाद नींद आ गई, और एकदम जब मेरी आँख खोली तो मुझे आवाज़ आई कानों में ना, कि वाज थ्रोइंग, उल्टियाँ हो रही थी उसको, इंजमाम को, यू नो. 3 बजे हम जागे और 3 बजे से सुबह तक जागते रहे उस मैच, टिल द मैच टाइम. 7 बजे 7:30 बजे इंजी, जब नाश्ते के टाइम पे हमने जाना था, अर्ली मैच था, तो इंजी कहता तुम जाओ जाके ना स्किपर को बोलो जाके, जी मैंने मैच नहीं खेलना. मैंने कहा ये काम आप खुद करें, इमरान भाई को मैं नहीं कह सकता जाके. लेकिन मजे की बात ये है, इमरान भाई ने बोला नहीं इंजी तुमने मैच खेलना है, और साथ में बोला चलो ठीक है तुम सिर्फ बैटिंग करना, फील्डिंग नहीं करना. तो इंजी तो इतना खुश हुआ है. अच्छा, मतलब फील्डिंग का शौक नहीं था बिल्कुल भी. सुपर सब वाला जो रूल आया था,
कि आप बैटिंग कर लो, इनकी वजह से उसमें हमारे बहुत सारे बड़े खुश होते थे। अच्छा चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अमार ऋषि सवाल पूछ रहे हैं, आज पवेलियन क्वेश्चन फॉर ऑल द पैनलिस्ट फ्रॉम अ फैन वाचिंग द पवेलियन डेली फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। नंबर 1, Babar is obviously world class, but I can't recall many pressure situation chases that he's seen all the way through the way Rizwan has, or even the way Misbah did back in his day. Do you agree? And what should he change about this? Number 2, is there a world where we have Abdullah Shafiq start with Fakhar Zaman instead of Imam? I see Shafiq filling the opening role that Imam did, whereas Fakhar, when in form, is amazing for momentum. I think जो second part है, जो कि पहले भी एक सवाल आ चुका है, जो शोएब के दोस्त ने पूछा था, but ये पहला वाला part जो है, इसके बारे में पैनल all 4 captains, please shed some light. 2-3 दिन पहले एक स्टैट पढ़ रहा था जिसमें बाबर की चेजिंग में एवरेज थी, तो वो दुनिया में कुछ मेरे ख्याल में कुछ तीसरे के चौथे नंबर पे 5 का था वो, एंड बाबर आई गेस ही इज ऑन द 4th नंबर इन द लिस्ट, 4th और 5th, 50 प्लस एवरेज। आई डोंट नो, अब जैसे ही आप 1-2 इनिंग्स आपकी बुरी होती है तो हम वो सारी पिछली परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं है। बाबर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और चेज में बड़े बड़े रन्स किए हुए हैं, और आज टोटली बैड लक की थी वो। कोई भी क्रिकेटर ये नहीं कहेगा जी वो बहुत ही गंदा शॉट खेलते हुए। अगेन यू नो वी शुड नॉट गेट इनटू दैट होल डिबेट। आई थिंक ये अभी वर्ल्ड कप के बाद इन चीज़ों को हमें पाकिस्तान टीम के कैंप से मैसेजेस आए हैं 1-2 पढ़ दूं के दे लव्ड इट, दे सेड इन हैदराबाद दे गॉट लुक्ड आफ्टर ब्यूटीफुली एंड अमेजिंग क्राउड, दैट्स व्हाट इट लिटरली रोड चांस ऑफ जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, लाउडर देन you know most of the Pakistan stadiums, and of course Rizwan chants all around. So thank you very much, India. So thank you very much, Hyderabad crowd. Well done. We really appreciate it. That was fantastic. Thank you for all the love and the hospitality. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, more questions. So ask the Pavilion. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the AirWise app. And I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram with me. Ask the Pavilion का सिलसिला जारी था. Ask the Pavilion का सिलसिला जारी था. Yes. शैतानियों से नहीं बात है। सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, बंदा सुता है, बस कर दे। So another सॉरी मैं जरा फोन चालू कर लूँ, फोन ने भी साथ देना छोड़ दिया है 8 घंटों के बाद। राइट जनाब, आज द पवेलियन। अगला सवाल है ZMS से IMZ23 और आपका सवाल है why Pakistan can't score big in first 10-15 overs. This is for all of you. Pakistan need aggressive openers. जीवन जनाब। अच्छा एक और मैं इसके साथ सप्लीमेंट कर दूं एक और चीज। There is another stat that is going around कि पाकिस्तान ने एक और रिकॉर्ड बनाया है 1000 balls without hitting a 6 in the power play. It's okay as long as we are winning. What matters is end results, and we are doing okay. I can understand where you coming from. आप कहाँ से आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम बॉटल ऑफ द लेडर है, जहाँ तक पहले 10 ओवरों में 6s नहीं है, but I suppose end of the day that's their plan, that's their game plan, that's how they want to go about it. As long as they're doing well, we're fine with it. वैसे भी बाकी 6s देखें तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे overall. So what matters is end result. Yes. Actually हम यही सबको कहना चाहते हैं, हमें end result में interest है. We just want to see our boys shine and win. उमर सईद 88 का सवाल है आसफ पवेलियन में कि when Babar came to bat, Sri Lankan bowlers mostly targeted or bowled to him on the leg stumps channel. Do you think that was a plan? Misbah, Shoaib, Moin, Wasim? अब तो वो श्रीलंकन थिंक टैंक ही बता सकता है कि क्या प्लान था, बट दे वर टारगेटिंग बिकॉज़ व्हेन बाबर केम टू बैट जो फील्ड प्लेसमेंट थी वो ये थी कि स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन, और एक डीप फाइन लेग था। तो जब ऐसी फील्डिंग कोई भी कैप्टन या कोई बॉलर सेट करता है इन द पावर प्ले इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, तो वो कोशिश यही करता है कि टारगेट जो है वो स्टंप्स में रखा जाए। तो इसी वजह से हो सकता है। उसकी जो एक सबसे बड़ी वजह है कि ही इज सच अ गुड प्लेयर कि आप उसको कहीं भी विड्थ नहीं दे सकते।
तो बेसिकली दे वांटेड हिम टू बॉल स्ट्रेट स्टंप्स में और सामने फील्डर रख के ताकि उसको कम से कम चांस मिले। जिस बॉल पे आउट हुआ अगर वो बॉल बल्ले को नहीं लगती तो वाइड बॉल थी। वाइड बॉल थी एग्जैक्टली। नॉर्मली उसकी जो और थोड़ी ज्यादा लग जाती तो चौका लग जाता फाइन लेग के ऊपर। टेक्निक भी आप देखें तो स्टंप्स को पूरा वो कवर करके खेलता है। बिल्कुल ऐसे ही। Riz 980 कहते हैं कि why backward point fielder was not on the circle today as witnessed multiple opportunities would have been there if the backward point fielder was on the circle. बैकवर्ड पॉइंट फील्डर सर्कल से तब आता है जब उसने सिंगल ना रोकनी हो। आगे जब स्टार्ट लेके आता है पहले 10 ओवर में, इसका मतलब है कि उसने सिंगल लेनी है। अगर वो लाइन से आएगा इनर सर्कल के तो वो सिंगल आराम से हो जाएगी। सो हेंस योर आंसर। एक और चीज़ भी है इसकी वसीम भाई, जब बैकफुट पॉइंट का फील्डर सर्कल से स्टार्ट लेके अंदर आता है तो वो काफ़ी सारा एंगल कट कर सकता है क्योंकि अगर आप सर्कल पे रहेंगे तो थोड़ा सा भी बॉल लेफ़्ट या राइट पे होगा तो वो 4 रन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा अटैक करेंगे तो वो आप रोक सकते हैं, आप ज़्यादा जो एरिया उसको कवर कर सकते हैं। इस वजह से बैकफुट पॉइंट का फील्डर वो आगे आता है। और बैकफुट पॉइंट पे मोस्टली बॉल जब बैट को लग के जाता है तो वो तेज़ जाता है, तो जब तेज़ जाता है आप सर्कल पे खड़े हो तो आपको इतना मौका नहीं मिलता है, इसलिए वो आगे आता है। अच्छा, दानियाल का सवाल है, दानियाल 550 आपसे पूछ रहे हैं सवाल शोएब मलिक। माय क्वेश्चन फॉर शोएब मलिक, विल ही प्ले नेशनल T20 कप दिस ईयर? यस इंशाल्लाह। दानियाल, यू गॉट एन आंसर टू योर क्वेश्चन। और उसकी मेन वजह तो बताएं आपकी क्यों खेल रहे हैं? उसकी मेन वजह ये है कि एक तो मुझे बहुत शौक है खेलने का, और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है द मोस्ट रन्स इन T20 वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं क्रॉस करूँ। आई नीड एट लीस्ट 300 कोई 1800 रन्स चाहिए टू बिकम the most runs so that getter in all the T20. leagues that you play, the T20 leagues and everything put together, right? Yes. And you'll be playing a lot of that in the next few years. So good luck few with that. years is a lot, maybe couple of years. No, Shoaib, you are super fit. खाना आप खाते नहीं हैं, कमर आपकी मनफी में जा चुकी है, आप खेल सकते हैं अभी 4-5 साल। खाना तू जो खा जाना साथ। ला दे मेरा ना, ला दे मेरा ना, यही होगा। समीर का सवाल है वसीम भाई आपसे। जी जी श्योर। समीर कहते हैं आज से पवेलियन में, वसीम भाई मैच जीतने की खुशी में प्लीज बता दें, इस बात का जवाब दें कि क्या धानी इंडिया के खिलाफ मैच खेल पाएगा? कौन है ये हजरात? ये इनका नाम है समीर। बैड न्यूज 23872 इनका ट्विटर हैंडल है, बट समीर इनका नाम लिखा हुआ है। गुड वन समीर, आई लाइक दैट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। यस। इब्राहिम, वसीम भाई, why don't you have a chat with Shaheen? Why didn't you have one this morning and why shouldn't you have more? इब्राहिम का सवाल है आपसे। कंटेंट मैं कराची साइट बैठा, वो हैदराबाद दक्कन बैठा है, सो बिट डिफिकल्ट टू हैव अ चैट विद हिम, इट्स बिट फार। ग्राउंड में होते तो उसे बात कर लेते यार। ऑलराइट जनाब, हमास यूनुस का सवाल है आज द पवेलियन से। हमास यूनुस कहते हैं, व्हाट शुड बी पाकिस्तान्स प्लान टू कंटेन रन्स एंड टेक विकेट्स इन द मिडल ओवर्स विद स्पिनर्स? काफ़ी टाइम से आपने कोई जवाब नहीं दिया। आई थिंक यही बात पहले भी मैंने की है कि एक तो आपको अपने जो फील्ड प्लान्स हैं वो उनको रिवाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है अगेंस्ट सर्टन बैट्समैन। जैसे आज भी कुशाल मेंडिस हमें पता है कि वो बहुत अच्छा खेलता है स्वीप शॉट और बैकफुट पे जाके वो कट शॉट और मिड विकेट की तरफ बहुत अच्छा खेलता है, इवन फुलर बॉल को भी शॉर्ट बॉल को भी। उसको हम उसके मुताबिक हमें फील्डिंग मिड ऑन ऊपर ला सकते हैं ताकि वो रिस्क ले, और जहाँ पे वो अच्छा है वो शॉट उसकी ब्लॉक करनी चाहिए हमें और विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करनी चाहिए। तो ये अगले मैचेस में भी हमें अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन कि कौन सा बैट्समैन कहाँ खेलता है प्रिसाइज प्लान्स हों और फिर उनको उस तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। That's important. Tahir Dar 52 asked the pavilion a request to Wasim Akram. I have studied from the same college as Wasim Akram, Government Islamia Civil Lines, Lahore. Hope you have a lot of good memories there. It's my birthday. Please wish me my birthday. Tahir, Sir, yes. जी ताहिर डार। ताहिर, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे आपका साल और आपका पूरा करियर अच्छा गुजरे। बट या वेरी गुड मेमोरीज ऑफ इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स। सबसे अच्छी मेमोरी आज शेयर करते हो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स। मेमोरी तो मुझे इतनी याद नहीं, मेरी स्कूल मेमोरीज आर मच बेटर। सिविल लाइन आई वाज देयर फॉर 1.5 years। The only thing I remember playing cricket in the middle of the छोटी सी ground है सीमेंट वाली, और एक क्लास अटेंड की थी 1.5 साल। That's all I remember. And my dad came
Once my dad came with a literally irony देखे क्रिकेट स्टंप लेके आए थे हाथ में आपको पीटने के लिए मैंने कुटन ओह नाइस व्हाट डिड यू डू और लकीली उसी दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था मजे की बात ये है वसीम भाई कि ये स्कूल और कॉलेज से बात याद आई है मैं स्कूल से क्रिकेट खेल रहा था स्कूल की टीम में था तो मुझे मरे कॉलेज है सियालकोट में जहाँ पे इलामा इकबाल साहब पढ़े हैं तो हमारा घर बिल्कुल साथ में था उस कॉलेज के जहाँ पे हम लोग रहते थे सियालकोट में तो मैं स्कूल से मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मरे कॉलेज के जो स्पोर्ट्स के हेड थे वो मेरे पास आ गए मुझे कहते हैं कि आपने कॉलेज की टीम से भी खेलना है मैंने कहा मैं कॉलेज तो जाता ही नहीं मैं तो स्कूल का वो कह रहे हैं उसकी फिक्र नहीं करें हम आपको क्लास में बिठा देंगे बस आपने थोड़े दिन आना है मैंने कहा स्कूल कौन जाएगा लेकिन मैं खेला एट द सेम टाइम कॉलेज की टीम से भी That's well done. मैं एक चीज़ बताता चलूँ इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर की जो टीम थी कॉलेज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज टीम्स दैट वाज आउट देयर इन द लाहौर सर्किट पंजाब यूनिवर्सिटी NGC जी सो आई रिमेंबर बिकॉज हम गवर्नमेंट कॉलेज में व्हेन आई यूज्ड टू प्ले फॉर गवर्नमेंट कॉलेज दिस वाज द टीम दैट वी यूज्ड टू बी वरीड अबाउट ए टीम सी जदी राती नींद नहीं आती सी कल सुबह इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के नाल मैच है सारा एंड दैट इज वन ऑफ द बिकॉज एफसी के साथ नो प्रॉब्लम एफसी कॉलेज के साथ कोई मसला नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कोई मसला नहीं बाकी किसी के साथ कोई मसला नहीं आप ही के साथ जो थी हमें टेंशन रहती थी बट अभी तक मसला चल रहा है अभी तक मसला चल रहा है वेल जेंटलमैन आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल डे लास्ट मैसेज फॉर टीम पाकिस्तान मिसबा Obviously, I think there is a lot of room for improvement और ज़रूर बैठ कर उनको देखना चाहिए मुझे लगता है कि बॉलिंग और फील्डिंग में पाकिस्तान कैन डू फार बेटर जो कि आज हमने किया है और वो करना पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट अगर हम वो करेंगे तो जिस तरह की हमारी बैटिंग अब कॉन्फिडेंट है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है देन वी हैड अ चांस just forget about cricket for 2 days recover eat well chillax and then get ready for the 14th मेरा भी यही पैगाम है आई थिंक चिल करना चाहिए इसमें एक दिन की ट्रैवलिंग होगी 2 दिन रिलैक्स करें स्विमिंग वगैरह सेशन कर लें यू नो और लॉट्स ऑफ फ्लूइड बिकॉज मुश्किल होगी अहमदाबाद में थोड़ी सी ट्रैवलिंग के बाद मलंग साहब को खूब थका मलंग साहब का पहले खुद मसाज कर ले फिर उनसे ले वेरी सिंपल मैसेज बड़ा मैच है फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है इट्स जस्ट अ गेम एंड ऑफ द डे और जो भी अच्छे फॉर्म में हैं हैव दैट कॉन्फिडेंस और फिर एक दफ़ा और पार करें वो लाइन को इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट जी हाँ शाहीन सबकी उम्मीद है आप लोगों के साथ वापस आए बड़ा मैच है एंड रिमेंबर द अदर टीम टीम इंडिया इज ए फैंटास्टिक टीम सो देयर कुड बी नो गैप्स नो मिसेस नो मिस्टेक्स दिस हैज टू बी वन ऑफ योर बेस्ट स्किल्ड परफॉर्मेंस वी विश बोथ द टीम्स ऑल द बेस्ट एंड विद दैट आइए नजर डालते हैं कि व्हाट डू वी हैव इन स्टोर फॉर यू कल का मैच आपकी खिदमत में आपकी स्क्रीन पर ये करा रहे हैं कल ये मैच 1:30 बजे बराह रास्त देखेंगे इट इज इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हम लोग 12 बजे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे टिल विद दैट ऑल आई कैन से इज थैंक यू जेंटलमैन थैंक यू शोएब थैंक यू मोइन थैंक यू मिसबा थैंक यू वसीम सी यू गाइस टुमारो 12 noon we'll be right here stay tuned take care of yourselves good night